students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is starting with Microsoft Excel 2010. In this chapter, we will learn Microsoft Excel, starting Microsoft Excel, components of Excel window, entering data in a worksheet, types of data, navigating a worksheet, working with worksheet, autofill. तो बेसिकली इसमें आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है, किस तरीके से आप उस पर काम करते हैं, उन चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं. You have already learnt about Microsoft Word, which is a word processing software, and Microsoft PowerPoint, which is a presentation software. In this chapter, we will learn about another category of software called spreadsheet software. Spreadsheet software is widely used in offices and schools. What makes spreadsheets so popular is their ability to perform calculations based on the data stored in them. For example, in offices, spreadsheet software is widely used for storing financial data. This data can be used for calculating profit and loss, average sales, etc. In schools, the spreadsheet can be used to calculate average marks, grades, etc. of students. Another important feature of spreadsheet software is its ability to recalculate the values automatically if the source data changes. The various spreadsheet software available in the market include Microsoft Excel, Lotus 123, Quattro Pro and OpenOffice. Microsoft Excel is the most popular spreadsheet application. तो अभी तक हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ा था, जो बेसिकली आपका वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है. आप अलग अलग टाइप के इसमें डॉक्यूमेंट्स डालते हैं, आपकी चीज़ें बनाते हैं. इसी में एक अलग टाइप का आपका एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. ये आपका यूजुअली ऑफिसेज में और स्कूल्स में यूज़ किया जाता है. ऑफिसेज में जैसे आपको सेल्स निकालनी है, एवरेज सेल्स निकालनी है, कौन सी आपकी क्या इनकम हुई है, क्या रेवेन्यू हुई है, उसके कैलकुलेशन के लिए. स्कूल्स में आपके कितने एडमिशन्स हुए हैं, आपके बच्चों के जो मार्क्स होते हैं, एवरेज मार्क्स निकालने के लिए, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी बेसिकली स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है. आपके अलग अलग टाइप के स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लोटस 123, क्वात्रो प्रो एंड ओपन ऑफिस. उसमें से सबसे ज्यादा जो मोस्ट पॉपुलरली यूज आपका स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. Microsoft Excel. Microsoft Excel is a spreadsheet software that is used for storing, organizing and manipulating data in rows and columns. In Microsoft Excel, you can perform complex mathematical calculations on data. It also allows you to present data pictorially in the form of charts for better understanding and analysis. Microsoft Excel comes as a part of Microsoft Office package. In this chapter, we will learn about Microsoft Excel 2010. तो बेसिकली Microsoft Excel आपका वो वर्ड प्रोसेसिंग यूनिट है या फिर सॉफ्टवेयर आप मान लीजिए जिसमें आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं. आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं वो आप इस पे कर सकते हैं. आपका अलग अलग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के डेटा होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग होते हैं, लॉजिकल डिसीजंस होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आज आप यहाँ पर जानने वाले हैं किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है. स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. To start Microsoft Excel, follow the given steps. Step 1, click on Start button. Step 2, click on All Programs. Step 3, click on Microsoft Office. Step 4, look for Microsoft Excel 2010 and click on it. The MS Excel window will be displayed. अब अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना है, सबसे पहले तो आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे. स्टार्ट बटन पे जाने के बाद आप ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे. ऑल प्रोग्राम्स पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे. फिर आपको देखना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 और आपको उस पर क्लिक कर लेना है. आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का विंडो डिस्प्ले हो जाएगा. Know it. The extension of the Excel file is .xls. तो कोई भी चीज़ या डेटा जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे डालते हैं, उसको सेव करते हैं, तो वो जब सेव होता है आपका डेटा तो उसका एक्सटेंशन होता है .xls. Components of Excel window. Like other Microsoft Office applications, the Excel window has also the same components like first, quick access toolbar, second, title bar, third, ribbon, fourth, status bar.
The following components are specific to an Excel window. Number 1, worksheet. It is a work area made up of horizontal rows and vertical columns wherein you enter and work with data. When you open Excel, 3 worksheets are added by default. You can add more worksheets as and when required. An Excel worksheet contains 16,384 columns and 1,48,576 rows. Second, workbook. It is a collection of multiple worksheets stored under a single file name. When you save an Excel worksheet, you are actually saving a workbook. An Excel worksheet contains 16,384 columns and 1,48,576 रोज। तो वर्कशीट आपका वो एरिया होता है जहां पे आपके हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, जहां पे अपना टेक्स्ट एंटर करके आप उसमें काम करते हैं। बाय डिफॉल्ट आपकी एक वर्कशीट में 3 शीट्स प्रेजेंट होती हैं, आप और भी ज्यादा ऐड कर सकते हैं। एक एक्सेल वर्कशीट में आपके 16,384 कॉलम्स होते हैं और 1,48,576 रोज होती हैं। सेकेंड, वर्कबुक. It is a collection of multiple worksheets stored under a single file name. When you save an Excel worksheet, you are actually saving a workbook. तो आपकी वर्कबुक के अंदर आपकी बहुत सारी एक्सेल शीट्स होती हैं। तो बेसिकली जब आप एक एक्सेल शीट या अलग अलग एक्सेल शीट्स को सेव कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप एक वर्कबुक को सेव कर रहे होते हैं। थर्ड, रो. It is the arrangement of cells in the horizontal direction. Each row on a worksheet is identified using a number. The rows are numbered from top to bottom in ascending order starting from 1, 2, 3 till 1,48,576. फिर आपकी रोज आती हैं जो कि आपकी अरेंजमेंट्स ऑफ सेल्स होते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हर एक रो में आपकी एक वर्कशीट अलग अलग नंबर से आइडेंटिफाइड होती है या आपकी नंबर वाइज चलती है 1, 2, 3 से लेकर आपकी 1,48,776 तक। तो इतनी सारी आपकी एक रोज होती है वर्कशीट में। 4, column. It is an arrangement of cells in the vertical direction. Each column on a worksheet is identified using a unique label. The columns are labeled as A, B, C to Z, followed by AA, AB, AC till XFD. फिर आपके कॉलम होते हैं, ये भी आपके अरेंजमेंट ऑफ सेल्स होते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। हर एक कॉलम आपका एक यूनिक लेबल के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है जो स्टार्ट होता है ABC और खत्म होता है Z पे, जिसकी स्टार्टिंग होती है AA, AB, AC जो जाता है बिल्कुल आपके एंड XFD तक। Number 5, cell. It is the most basic unit of a worksheet. It is formed by the intersection of a row and a column. फिर आपका सेल आता है, बिल्कुल बेसिक यूनिट होती है आपकी वर्कशीट की, जहां पर आपकी रोज एंड कॉलम्स इंटरसेक्ट करते हैं, मीट करते हैं, वो आपका सेल होता है। 6, cell address. Every cell in a worksheet is identified using an address that corresponds to the column letter and the row number. For example, if row 5 and column B intersect, the address of the cell formed by this intersection becomes B5. Name box displays the cell address in a worksheet. तो आपका cell address वो होता है, एक unique address होता है जहां पर आपका column और cell बेसिकली आपका meet कर रहा होता है, रो का नंबर और आपका cell का नंबर। जैसे कि अगर आपका B है, रो आपका 5 है, कॉलम आपका B है, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा वो आपका सेल एड्रेस हो जाएगा B5. 7, active cell. An active cell refers to a cell that is currently selected by clicking mouse pointer or keyboard keys. Only one cell can be an active cell at a time. An active cell is bounded by a heavy border around it. तो आपका जो एक्टिव सेल होता है वो सेल होता है जो करंटली आपने सिलेक्ट किया होता है बाय क्लिकिंग माउस पॉइंटर ऑन इट। एक बार में एक ही सेल एक्टिव हो सकता है, मल्टीपल सेल्स नहीं हो सकते हैं। एक एक्टिव सेल जो होता है जिस पे आप क्लिक करते हैं उसके जो बॉर्डर्स होते हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं, बॉर्डरिंग वहां पे हो जाती है टेम्पररी बेसिस पे। 8, सेल पॉइंटर. इट इज द थिक ब्लैक बाउंड्री दैट सराउंड्स द एक्टिव सेल. फिर आपका सेल पॉइंटर होता है, जो आपका एक्टिव सेल होता है उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो थिक ब्लैक मार्कर से, बॉर्डर से हाईलाइटेड होती हैं।
9. Range of cells. It refers to a group of cells adjacent to each other forming a rectangular shape. फिर आपके range of cells आते हैं जिसमें आपके group of cells होते हैं जो कि आपके हर adjacent होते हैं यानी कि side by side होते हैं और collectively आपका एक rectangular form कर देते हैं. Number 10. Formula bar. It is the bar at the top of the Excel window that displays the contents of the current cell. The formula bar also contains the enter and the cancel buttons. फिर आपके formula bar आते हैं आपके Excel के बिल्कुल टॉप वाले बार पे ये present होते हैं जिसमें आपके enter और cancel buttons दोनों present होती हैं. Note, the first ever electronic spreadsheet was VisiCalc, which was co-created by Daniel Bricklin and Bob फ्रैंकस्टन इन द अर्ली 1980s. तो आपका सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो था वो विसीकैल्क, जो कि जिन्होंने को क्रिएट किया था इसे डैनियल ब्रिकलिन और बॉब फ्रैंकस्टन के साथ इन द 1980s, अर्ली 1980s में. Follow the given steps to enter data in a worksheet. Step 1, select the cell and type the data. Step 2, press the enter key or click the enter button on the formula bar to accept the entry. To reject the entry, press the ESC key or the cancel button. अब अगर आपको कोई भी डेटा वर्कशीट में एंटर करना है, सबसे पहले आप उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और अपना डेटा टाइप कर लेंगे. टाइप करने के बाद या तो आप एंटर की को प्रेस करेंगे या फिर आपका जो फॉर्मूला बार होता है उसमें आपको एंटर बटन प्रेस करना है. अगर आपको ये सारा का सारा डेटा कैंसिल आउट करना है तो उसके लिए या तो आप ESC की को प्रेस करेंगे या फिर कैंसिल बटन को प्रेस करेंगे. टाइप ऑफ डेटा. यू कैन एंटर नंबर्स, dates and times, formulas and text in a cell. Let us discuss about these data types in detail. Numbers. A worksheet is primarily used for the computation of numeric data. Numbers are values that consist of numerals from 0 to 9, including symbols like plus, minus, slash, comma, and decimal point. You can also use characters like dollar, percentage, and comma with number values. All number entries are right aligned in a cell by default. Some of the examples of number values are as follows: 125, 67,000, $5,600, 600.00. सबसे पहला जो आपका टाइप आता है या कॉम्पोनेंट आता है डेटा का वो है नंबर. नंबर यानी कि बेसिकली आपका जो वर्कशीट होता है वो न्यूमेरिक डेटा के कंप्यूटेशन यानी कैलकुलेशन के लिए ही बना होता है. इसमें आपके हर एक सेल में आप अलग अलग टाइप के डेटा डाल सकते हैं. 0 से 9 तक आपके बहुत सारे नंबर्स होते हैं उनको आप एंटर कर सकते हैं. अलग अलग आपके सिंबल्स होते हैं जैसे कि आपका स्लैश हो गया, कॉमा हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, वो भी आप एंटर कर सकते हैं. एंड बाय डिफॉल्ट जो आप नंबर डालते हैं हर एक सेल में वो राइट साइड में आपका अलाइन हो जाता है ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट. इसके अलावा आपके परसेंटेज साइन होते हैं, डॉलर का साइन होता है, वो भी आप डाल सकते हैं. जैसे आपके नीचे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं 125, 67,000, $5,600. तो इन सारे फॉर्मेट में आप डाल सकते हैं. अलॉन्ग विद दिस जो डेसिमल होता है, छोटा पॉइंट होता है, वो भी आप इन सेल्स में डाल सकते हैं. Date and time. You can enter date values like 07091993 and time like 11:12:04 a.m. in a cell on a worksheet. The way a date or time is displayed depends on the format applied to the cell on a worksheet. All dates and time entries are right aligned in a cell by default. तो आप अपने जो cells होते हैं एक worksheet के उसमें आप date और टाइम, डेट का पैटर्न जैसे आपका 07/09/1993 और आपका टाइम का फॉर्मेट जैसे 11:12:04 AM इस फॉर्मेट में आपका आ सकता है. डेट और टाइम को डिस्प्ले जो आपके सामने होता है वो उसी पैटर्न में होगा जिस फॉर्मेट का, जिस टाइप का आपने वर्कशीट अप्लाई कर रखा है. एंड बाय डिफॉल्ट जस्ट लाइक नंबर्स आपके डेट और टाइम भी आपके सेल्स में राइट साइड पे अलाइन हो जाते हैं. फॉर्मूलाज. A formula is a mathematical expression involving number values, operators like plus, minus, slash, and cell addresses for performing calculations on worksheet. Formulas evaluate to a single value. All formulas begin with an equal to sign. Some of the examples of formulas are is equals to 3 plus 4 will result 7 is equals to a1 plus a2. फिर आपका आता है फॉर्मूलाज. फॉर्मूलाज यानी कि आपके जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, कंप्यूटिंग होती है, वो सब जो आपको करनी होती है. प्लस,
माइनस, स्लैश, ये सारे के सारे सिंबल्स भी आप एंटर कर सकते हैं। ये आपकी वर्कशीट्स पे अलग अलग जो सेल एड्रेसेस होते हैं उनकी मदद से आपका जो कंप्यूटर होता है, सेल्स होती हैं, वो कंप्यूट करते हैं, यानी कि कैलकुलेट करते हैं। एंड ये जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपके इक्वल टू से स्टार्ट होने चाहिए। जैसे कि आपको नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, इज इक्वल्स टू 3 + 4 विल रिजल्ट 7। तो आपका हर एक फॉर्मूला हमेशा इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है। Know it. To treat a number value as a text entry in a cell, you can type an apostrophe before the number value. तो अगर आप चाहते हैं कोई भी नंबर आपका एक सेल में टेक्स्ट एंट्री की तरह आपको दिखे, तो उस नंबर से पहले आप एक एपोस्ट्रॉफ लगा देंगे तो वो आपका एक टेक्स्ट एंट्री के फॉर्म में आपका नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। टेक्स्ट data which is not recognized by Excel as a number, date, time or formula is treated as text data. Text is any combination of letters, numbers, symbols like slash, hyphen, question mark or spaces. By default, all text entries are left aligned in a cell. Text entries are used to give headings or titles, names, etc. on the worksheet. Some of the examples of text entries are bracket open 102 to 8990 bracket close, name, W-2345, marks, etc. तो आपका जो डेटा जिसमें आपके नंबर्स, सिंबल्स, डेट, टाइम, फॉर्मूला ये आइडेंटिफाई नहीं होते हैं, वो सारा डेटा आपका टेक्स्ट होता है। बाय डिफॉल्ट आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं, या आपके अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, अल्फाबेट नंबर्स के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, सिंबल्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये आपका बाय डिफॉल्ट आपके सेल में लेफ्ट साइड पे अलाइन रहता है। जैसे कि आपका नीचे एग्जांपल दे रखा है, 2 ब्रैकेट्स के बीच में आपको 1028990, फिर आपका नेम लिखा हुआ है, W हाइफन, फिर कुछ नंबर्स के वैल्यूज हैं, तो ये सारे आपके टेक्स्ट में आते हैं। Navigating a worksheet. The following table lists some of the keys and the key combinations that let you easily move around in a worksheet. Key or key combinations moves the cell pointer to arrow keys up, down, left or right of the current cell, tab, next cell in a row, shift plus tab, previous cell in a row, enter, one cell down in a column, shift plus home, one cell up in a column, home, first cell in a row, control plus home, cell all of the current worksheet, page up, one screen up, page down, one screen down, alt plus page up, one screen right, alt plus page down, one screen लेफ्ट। फिर आपके कुछ कीज आते हैं और या फिर की के कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें आप अपने जो सेल पॉइंटर होते हैं उसको अलग अलग जगह पे मूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने एरो कीज जो आपकी होती हैं वो आपको अप, डाउन, लेफ्ट और राइट में मूव करने में हेल्प करती हैं आपके करंट सेल से। फिर आपका टैब आता है, आपके रो में जो नेक्स्ट सेल होता है टैब पे क्लिक करते ही आप उस पर पहुंच जाते हैं। शिफ्ट प्लस टैब आता है, आपके जो प्रीवियस सेल होता है उस पर आपका पॉइंटर चला जाता है। एंटर अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका जो कॉलम होता है 1 सेल डाउन आ जाते हैं आप उसी कॉलम में। शिफ्ट प्लस होम होता है, आपका जो कॉलम का फर्स्ट सेल होता है उसमें चला जाता है 1 सेल अप इन अ कॉलम। फिर आपका होम आता है, जो आपके रो का फर्स्ट सेल होता है उसमें आपका पॉइंटर चला जाता है। कंट्रोल प्लस होम हो जो होता है वो आपका सेल ऑल ऑफ द करंट जो आपके वर्कशीट होता है उसमें चला जाता है। देन आपका पेज अप होता है, आपका 1 स्क्रीन अप चला जाता है। पेज डाउन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो 1 स्क्रीन डाउन चला जाएगा। फिर आपका ऑल्ट प्लस पेज अप होता है, वो आपका यूज होता है आपकी स्क्रीन को राइट साइड मूव करने के लिए। और फिर आपका ऑल्ट प्लस पेज डाउन होता है, वो आपका 1 स्क्रीन लेफ्ट के लिए। Know it. To move the cell pointer to a particular cell in a worksheet quickly, type the cell address in the name box and press enter. अगर आपको किसी भी सेल पे मूव करना है, किसी भी वर्कशीट पे पर्टिकुलरली बहुत जल्दी, तो आपको सेल एड्रेस में आपका जो भी वो आपका नेम बॉक्स आता है वहां पर आपको सेल एड्रेस डाल के एंटर की कर देना है, तो आपका तुरंत उसी सेल पे आपका पॉइंटर चला जाएगा। Working with worksheets. When you open a new Excel workbook, 3 worksheets are added by default. You can add more worksheets to the workbook or delete worksheets that are no longer required from the workbook. Also, it is a good practice to give relevant names to the worksheets to convey what kind of data they store. Let us discuss the steps to rename and to add or remove a worksheet. Switching between worksheets. To switch between worksheets, click the worksheet name on the worksheet tab.
When you add more worksheets, only a few worksheet names are visible on the screen. To switch between worksheets, you can click the arrow buttons on the worksheet tab. फिर आपका आता है वर्कशीट्स के साथ काम करना. किस तरीके से आपके 3 ही जो आपकी वर्कशीट्स होती हैं बाय डिफॉल्ट ऐड होती हैं, उसके अलावा आप वर्कशीट्स को ऐड कर सकते हैं, रोज एंड कॉलम्स को इंक्रीज कर सकते हैं. आपकी वर्कशीट्स के अलग अलग नाम होते हैं, आपके अलग अलग तरीके होते हैं बेसिकली वर्कशीट पे काम करने के. सबसे पहले आपका होता है स्विचिंग बिटवीन वर्कशीट्स. अगर आपको 2 वर्कशीट्स के बीच में स्विच करना है, एक से दूसरी वर्कशीट पे जाना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो वर्कशीट टैब में जाके आपके जो वर्कशीट का नाम है उस पर आपको क्लिक कर लेना है, या फिर आपका जो भी आपने वर्कशीट्स को ऐड कर रखा है उन सारे नाम के साथ आपकी जो स्क्रीन है उस पर भी वो सारे नाम आ जाएंगे. आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है, आप एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पे स्विच कर पाएंगे. रीनेमिंग अ वर्कशीट्स. The steps to be followed for renaming a worksheet are: Step 1. Double click the name of the worksheet on the worksheet tab. Step 2. Type a new name and press enter. अगर आपको किसी existing worksheet का नाम चेंज करना है तो सबसे पहले आपको डबल क्लिक करना है आपकी वर्कशीट पे, जो कि आपकी वर्कशीट टैब पे उसका नाम प्रेजेंट होगा. उसके बाद डबल क्लिक करने के बाद आप अपना नया नाम एंटर करने के बाद, टाइप करने के बाद आपको एंटर की प्रेस करनी है, आपका नाम चेंज हो जाएगा. Adding a new worksheet. For quickly adding worksheet at the end, click the insert worksheet button at the end of the worksheet tab. अगर आपको जल्दी से किसी वर्कशीट को ऐड करना है तो सिंपली आपके वर्कशीट के एंड में आपको insert worksheet बटन पे क्लिक करना है, आपकी वर्कशीट ऐड हो जाएगी. However, to add a new worksheet between the existing sheets, select the worksheet before which you want the new worksheet to be placed and follow the given steps. Step 1. Click the arrow next to the insert option in the cells group on the home tab. A drop down list is displayed. Step 2. Choose the insert sheet option. तो अगर आपको पहला वाला तरीका तो आपका तब है जब आपको किसी भी वर्कशीट के एंड में वर्कशीट को ऐड करना है, लेकिन आपको 2 एग्जिस्टिंग वर्कशीट्स के बीच में अगर वर्कशीट को ऐड करना है तो उसके लिए आपके कुछ स्टेप्स हैं. सबसे पहले तो आपके होम टैब में सेल्स ग्रुप में आपका एक इंसर्ट ऑप्शन होगा, आपको उस पर क्लिक करना है. उस पर क्लिक करने के बाद आपको इंसर्ट शीट ऑप्शन पे क्लिक करना है. आपकी 2 एग्जिस्टिंग वर्कशीट्स के बीच में एक नई वर्कशीट ऐड हो जाएगी. नोट: To add a new worksheet before an existing worksheet, quickly select the worksheet and press Shift plus 11. अगर आपको किसी existing worksheet के पहले कोई worksheet लगानी है तो उसके लिए आपको worksheet पे select करना है और आपको press करना है Shift plus F11. आपकी existing worksheet के पहले एक worksheet add हो जाएगी. Removing a worksheet. Place the mouse pointer on the worksheet that you wish to delete and follow these steps. Step 1. Click the arrow next to the delete option in the cells group on the home tab. A drop down list is displayed. Step 2. Choose the delete sheet option. अब अगर आपको किसी worksheet को remove करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस शीट को सिलेक्ट कर लेना है. शीट को सिलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब में जो सेल्स ग्रुप होता है उसमें आपको डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करना है. एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने अपीयर हो जाएगी, उसमें से आपको डिलीट शीट ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपका सिलेक्टेड वर्कशीट डिलीट हो जाएगा. Note: You can quickly insert, delete or rename worksheets by right-clicking on the worksheet tab and choosing the appropriate option from the shortcut menu. अगर आपको शीट इंसर्ट करनी है, डिलीट करनी है या फिर रीनेम करनी है, तो अगर आपको इतने सारे स्टेप्स को फॉलो नहीं करना है तो सिंपली आपको उस शीट पे क्लिक करना है, राइट क्लिक दबाना है और उसमें आपके अलग अलग ऑप्शंस होंगे. उस शॉर्टकट मेन्यू में आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, आपकी जो भी चीज़ है डिजायर्ड चीज़ वो हो जाएगी. Autofill. Autofill is a feature in Excel that allows you to quickly create a series of numbers, dates or other items that follow a particular pattern. Using autofill, you can fill the cells using the predefined or user-defined series of data. Predefined series include Monday, Tuesday or Jan, Feb, March and so on. User-defined series include 2, 4, 6 or 1st March 2001, 1st May 2001, 1st July 2001 and so on. You can generate a series either by using the fill handle or by using the fill option in the editing group on the home tab. Fill handle is the small black square that appears when you place the mouse pointer at the lower right corner of the selected cells. When you point to the fill handle, the cursor shape changes to a black
प्लस साइन। तो आपका ऑटो फिल आपका वो फीचर होता है एक्सेल में जो आपको अलाउ करता है जब आपके एक ही पैटर्न में आपकी कोई चीज हो रही होती है तो बार बार आपको वो चीज मैनुअली ना टाइप करने पड़ी और ऑटो फिल हो जाए, अपने आप ही वो चीज फिल हो जाए, तो वहां पर आपको ऑटो फिल का फीचर यूज होता है। इसमें आपके प्री डिफाइंड या फिर यूजर आइडेंटिफाइड मेथड्स की टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है। प्री डिफाइंड सीरीज में आपको मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च ये सारी सीरीज आती हैं और आपके यूजर डिफाइंड सीरीज में 2, 4, 6, 1 जुलाई 2006, 2 मार्च 2001 ये सारी चीजें आती हैं। तो आपकी ये जितनी भी चीजें होती हैं ये यूजर सिलेक्ट कर सकता है या तो फिल हैंडल से या फिर फिल ऑप्शन इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब। जैसे ही आप फिल हैंडल को करते हैं तो ये जो फिल हैंडल होता है छोटा सा एक ब्लैक कलर का स्क्वायर ब्लॉक होता है, जैसे ही आप प्लेस करते हैं अपने माउस पॉइंटर को लोअर राइट साइड में आपके सिलेक्टेड सेल पे तो ये छोटा सा ब्लैक कलर का स्क्वायर आपको दिखने लग जाता है। सिमिलरली जब आप पॉइंट करते हैं फिल हैंडल पे तो फिल हैंडल पे क्लिक करते ही आपका जो कर्सर का शेप है इट चेंजेस टू अ ब्लैक प्लस साइन। यूजिंग फिल हैंडल to generate predefined series, the steps to be followed are: Step 1, specify the initial value of the predefined series. Step 2, drag the fill handle across the cells that you want to fill. अब अगर आपको fill handle को यूज करते हुए आपकी चीजों को करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको स्पेसिफाई करनी है इनिशियल वैल्यू आपके प्री डिफाइंड सीरीज की। उसके बाद आप अपने फिल हैंडल को ड्रैग करते हुए आपके सेल्स के पास लेकर आएंगे जिनको आपको फिल करना है। Know it. Dragging the fill handle in the downward or right direction fills the values in the increasing order. To fill the values in the decreasing order, you can drag the fill handle in the upward or left direction. तो अपने fill handle को जब आप राइट साइड और नीचे लाते हुए आप मूव करते हैं, ड्रैग करते हैं, तो आपका जो प्री डिफाइंड स्पेसिफाइड नंबर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होता रहता है। अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करना है तो अपवर्ड या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में अपने माउस पॉइंटर को आप ड्रैग करेंगे तो वो डिक्रीजिंग वैल्यू में आएगा। टू जनरेट अ यूजर डिफाइंड सीरीज, द स्टेप्स टू बी फॉलोड आर: Step 1, specify the first 2 consecutive values of the series. Excel will pick up the pattern from the values entered and generate the rest of the series. Step 2, drag the fill handle across the cells you want to fill. अब अगर आपको यूजर डिफाइंड सीरीज को पहले से ही आपको डिफाइन करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव वैल्यूज ऑफ द सीरीज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो एक्सेल है वो उसको आपके पैटर्न को वो पिकअप कर लेगा और वैल्यूज को ऑटोमेटिकली आपके सीरीज या सेल्स में जनरेट करता हुआ चलेगा। फिर आपको ड्रैग करना है अपने फिल हैंडल को, आपके जितने भी सेल्स में आपको वो सारी चीजें यूजर डिफाइंड सीरीज को आपको डालना है तो आपके माउस को आपको ड्रैग करते हुए लेकर आना है। यूजिंग द फिल ऑप्शन, you can also generate a series using the fill option in the editing group. The steps to generate a series using the option are: Step 1, specify the first 2 consecutive values for the user defined series. Step 2, select the range of cells to be filled in. Step 3, click the arrow next to the fill option in the editing group on the home tab. Step 4, select the series option from the drop down list. The series dialog box is displayed. Step 5, specify the required options in the dialog box and click OK. The selected range is filled according to the pattern specified by the first 2 values. अब अगर आपको fill option को यूज करते हुए एक पैटर्न को फॉलो करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्पेसिफाई करना है पहले 2 कंसेक्यूटिव वैल्यूज आपके यूजर डिफाइंड सीरीज में। ये कर लेने के बाद आपको आपके रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करना है जिसमें भी आपको ये आइटम्स या सीरीज को फिल इन करना है। इसके बाद आपके होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में आपको सिलेक्ट करना है फिल ऑप्शन के पास जो एरो है उस पर क्लिक करते ही आपको सीरीज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपके सामने एक सीरीज डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ही डिस्प्ले हो जाएगा आपको स्पेसिफाई करना है रिक्वायर्ड ऑप्शन को और आखिरी में आपको ओके पे क्लिक कर देना है। आपका जितना भी सिलेक्टेड रेंज है वो ऑटोमेटिकली उस पैटर्न में फिल होता जाएगा। To revise, Microsoft Excel is a spreadsheet software that is used for storing, organizing and manipulating data in rows and columns.
A worksheet is a work area made up of horizontal rows and vertical columns wherein you enter and work with data. A workbook is a collection of multiple worksheets stored under a single file name. A cell is formed by the intersection of a row and a column. A cell pointer is the thick black boundary that surrounds the active cell. Range of cells refers to a group of cells adjacent to each other forming a rectangular shape. You can enter numbers, dates and time, formulas and text in a cell on a worksheet. Autofill is a feature in Excel that allows you to quickly create a series of numbers, dates और other items that follow a particular pattern. तो Microsoft Excel आपका एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है, कैलकुलेट आपकी चीज़ें करी जाती हैं, ऑर्गेनाइज होता है आपकी रोज एंड कॉलम्स में. इसके अलावा आपकी जितनी भी वर्कशीट्स होती हैं उसमें आपके अलग अलग रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं. बाय डिफॉल्ट आपकी 3 वर्कशीट्स उसमें होती हैं, आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं. और इस चैप्टर में आपने जाना कि इस तरीके से 2 एग्जिस्टिंग वर्कशीट्स के बीच में भी आप वर्कशीट को डाल सकते हैं, किसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट के पहले भी डाल सकते हैं और एंड में भी डाल सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, फॉर दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, जिसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज आपको खुद से करनी है.